Today we'll discuss the next topic. Before we discuss the next topic, we just recall our previous chapter we discussed of 9th class, motion. We discussed the motion, kinds of motion, types of motion, and different so many things we discussed there. If you have any doubt in motion, you can comment me in motion any topic of motion video. Now, as I told you that motion comes under the kinematics. Kinematics means to study of motion without cause. To study of motion without cause called as kinematics. ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. Second thing, this chapter today we will discuss about force and laws of motion. Kinematics में क्या था? Without laws हम पढ़ते थे. Motion है तो है, हो गया, चलो ठीक है. Acceleration हो रहा है तो हो रहा है, मुझे cause नहीं जानना. But here we will discuss in dynamics. अब जो हम बात करेंगे ये आता है dynamics में. Dynamics में क्या करते हैं? We discuss about the cause of motion, why it happened. What was the basic cause behind this? इसके पीछे क्या कारण था? दया, find out the क्या था? कुछ तो गड़बड़ था. Same thing here. There is something behind the motion, and these things we will discuss in kinematics. Sorry, dynamics. Okay. So without any further delay, we start our topic: force. क्या force? In 8th class, आप सब 9th में हो, okay? So in 8th class, we discuss about the force. Force means a push or pull called as force. हमने यही पढ़ा था 8th class में. I just see here. You can see here. This is a box. Either you can push it or you can pull it. This is force. हमने ये पढ़ा. But 9th में आ गए. अब थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है. A push or pull by which we can change the state of an object called as force. What is force? Force is defined as the push and pull by which we can change the state of an object called as force. अब इससे पहले एक और बात, जब तक फोर्स नहीं आया था उससे पहले ना हम क्या मानते थे कि दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है सब रेस्ट में है, सबका इनिशियल स्टेज क्या है? रेस्ट है. लेकिन ये रेवोल्यूशन तो लाया गैलीलियो एंड सर आइजैक न्यूटन ने. सर आइजैक न्यूटन एंड गैलीलियो ने मिलकर बताया नहीं, ये जो आपका कंसेप्ट है कि एवरीथिंग इज रेस्ट इन द ऑब्जेक्ट, नेचुरली एवरीथिंग इज रेस्ट इन द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इज रॉन्ग. इस चीज को प्रूफ किया किसने? गैलीलियो एंड सर आइजैक न्यूटन ने. हमेशा याद रखना कि सर आइजैक न्यूटन का जितना योगदान है उससे कम ही, थोड़ा बट ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम है, लेकिन गैलीलियो का भी बहुत योगदान है इसमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ahead that push or pull by which we can change the state or try to change the state of an object called as force. ये पहला definition हो गया. A push or pull by which we change and try to change the state of an object called as force. ये तो first definition आपका हो गया. Next, इसमें हम एक और क्या बोल सकते हैं? The action which deform the object. An action which deform the object. अब बोलो सर deform क्या होता है? The action, sorry. An action which deform, यहां एंड कर दो, यहां दर. एक ऐसा एक्शन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दे? डिफॉर्म कर दे. अब ये डिफॉर्म मीन्स क्या होता है? मीन्स उसके पोजीशन में चेंज करे, उसके पोजीशन में चेंज करे, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. सो यू हैविंग टू डेफिनेशन, अ पुश और पुल बाय व्हिच वी कैन चेंज or try to change the state of an object called as force. Next, an action, the action by which we can deform the object called as force. दोनों definition क्लियर है?
कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट? Now deforming. That what is deforming? The word. Now we'll discuss that. What is deforming? I write it down here. So deforming means change in shape. अब सुबह सुबह क्या करते हो? सिंपली ब्रश करते हो. ब्रश के लिए क्या करते हो आप? टूथपेस्ट को स्क्यूज करते हो. स्क्यूज मीन्स उसको ट्यूब के शेप को आप चेंज करते हो. ठीक है. एक और एग्जाम्पल, लेमन देखा आपने? लेमन को आप स्क्यूज करते हो. उससे भी क्या करते हो? उसके शेप में चेंज करते हो. पहले मोटा सा होता, आप बहुत पतला सा कर देते हो उसको स्क्यूज करके, मीन्स दबा के. नाउ वन मोर एग्जाम्पल लाइक बैलून. बैलून का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. बैलून में आप क्या करते हो कि आप उसे फुलाने के बाद क्या करते हो? उसको प्रेस करते हो. दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिफॉर्मिंग. So I just give you one example. Let us having this shape of tape. बस ये दिख रहा है गोल टाइप में टेप है. What I did, I just apply the force. मैं अभी अप्लाई नहीं किया, अब मैंने फोर्स को अप्लाई कर दिया. अब देखा आपने, गोल था, अभी क्या हो गया इसका? फोम पूरा चिपटा सा हो गया ना. दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग. समझ गया? कोई डाउट? सो बाय अप्लाइंग फोर्स यू डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट. अब मैंने बोला था, एक और डेफिनेशन बोला था, दूसरा डेफिनेशन, अ पुश और यू कैन यूज एंड, ओके, और पुल. by which we change the state of an object. हम मैंने यहां पे 2 वर्ड लिखा मेनली. आप सब कुछ भूल जाओ, बस 2 वर्ड याद रखना. जस्ट अ मिनट. आप 2 वर्ड याद रखना, पुश एंड पुल. पुश और पुल का एग्जाम्पल, हैविंग दिस. ठीक है. पुल का एग्जाम्पल क्या होगा? यू हैव मार्कर, हैविंग दिस मार्कर. मैंने क्या किया? इसको फोर्स लगाया, पुल. दिस इज कॉल्ड पुल. एक और एग्जाम्पल देखते हैं पुल का. टग ऑफ वॉर देखो. टग ऑफ वॉर, उधर से एक खींच रहा है, उधर से दूसरा खींच रहा है. दिस इज कॉल्ड टग ऑफ वॉर. में क्या होता है? एक रस्सी होती है यहाँ पे. ठीक है. मैं एग्जांपल बस ऐसे ही ड्रॉ करके आप कुछ ना हो. बहुत सारे होते हैं, इस साइड भी 6 होते हैं, उस साइड भी 6 होते हैं. 6 प्लेयर होते हैं और दोनों एक दूसरे खींच रहे होते हैं बहुत तेजी से. दिस कॉल्ड पुल. दिस एग्जांपल ऑफ पुल. अब पुश का एग्जांपल क्या होगा? अभी आपने देखा ये क्या था? पुल था. अब मैंने यहाँ पे ना क्लोज किया तो मुझे पुश करना पड़ा. दिस इज एग्जांपल ऑफ पुश. ठीक है. और पुश का एग्जांपल क्या होगा? लाइक when suddenly ऐसा हो नहीं, when suddenly पुश का एग्जाम्पल बता रहा हूँ. in quarantine in these days you can see there is so many vegetable vendors comes in your street, on the street. So what they do, they just push the cart. Okay, so you understand push and pull and deforming. तीनों चीज क्लियर है? डिफॉर्मिंग क्लियर, पुश क्लियर, पुल क्लियर. कोई डाउट? नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए. चलो एक और चीज मैं बता दूं. हमेशा याद रखना कि जो पुश है ना, वो भी किसका पार्ट है? सॉरी, पुल जो है वो भी किसका पार्ट है? पुश का पार्ट है. सिर्फ पुल ही होता है, सॉरी सिर्फ पुश ही होता है. पुल भी एक पार्ट है किसका? पुश का. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये आप कंफ्यूज हो गए यहां पे. कैसे देखते हैं? मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब मुझे क्या करना है? इसको पुल करना है. अगर आप पुल करते हो कोई भी चीज को, अगर आप पुल करते हो तो किसी के रिस्पेक्ट में किसी को आप पहले पुश करते हो, देन उसका रिएक्शन होगा पुल. ठीक है. ये चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो गया. अभी हम चैप्टर में और इसको देखेंगे. तो आपको पुश पुल क्लियर हो गया और डिफॉर्मिंग. एनी डाउट टिल हियर? नाउ अब इस फोर्स को लाके हम क्या चेंज करते हैं? अब इस फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है? इस फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है? तो मेनली 5 और 6 बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. हम 1 by 1 फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं. सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. आफ्टर फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, नाउ विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फोर्स. दैट व्हाट हैपेंड. मैंने बोला कि मैं अप्लाई किया फोर्स. अब फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग फोर्स व्हाट वी कैन डू.
So one by one we discussed with the explanation. The first effect is by applying force, by applying force, a body can move the stationary body. अब क्या कर सकते हैं? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर दिस इज ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है ऐसे। अब मैंने क्या किया, क्या ये अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगा? नहीं ना। सो व्हाट वी डू, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, हमने इसके लिए इस पे क्या किया, फोर्स लगाया। जब हमने इस पे फोर्स लगाया देन दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। ये ऑब्जेक्ट जो था, मान लो ये यहाँ पे, क्या ये मूव करना स्टार्ट हो गया? नहीं। व्हाट वी डू, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, तब ये मूव किया। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द मेनली स्टेट। अब देखो मैंने इन तीनों को क्या लिखा, रेड से लिखा है, मीन्स ये तीनों किसका, स्टेट में चेंज करने का। स्टेट मीन्स क्या था, उसके पोजीशन में चेंज, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा डेफिनेट लिखना भी है, थोड़ा इफेक्टिव में, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड को तीन सेंटेंस में डिफरेंट टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट इज बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर वो रेस्ट में है तो उसको कहां ले आएंगे, मोशन में है, फोर्स ला के। अब बोले सर ये जो फैन घर में स्टेशनरी रहता है वो अचानक मोशन में कैसे आता है? भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम 10th क्लास में इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट। नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे मूव कर रहा था, ये मैंने क्या किया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, मैंने फोर्स अप्लाई किया और वो क्या गया, तेज से रोटेशन करना स्टार्ट हो गया। वो क्या हुआ, तेजी से रोटेशन में स्टार्ट हो गया। जस्ट लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर इट। हैविंग 2 मार्कर, मेरे पास 2 मार्कर यहां पे। ओ पहला था ये स्टेशनरी था, मैं फोर्स लगाया, मोशन में लाया, पहला क्लियर। दूसरा, सेकंड आपने देखा, सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने क्या किया, 2 पेन ले लिया, ट्राई करते, लेट्स सी। ये मोशन में था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मोशन में आया, मैंने क्या किया, फिर इसको मोशन फोर्स लगा के और भी मोशन लगा दिया। देखिए स्टार्टिंग में इतना ही मोशन में था, मैंने क्या किया, फिर और तेज से मोशन लगा दिया, और देखिए और रोटेशन स्टार्ट कर दिया, मींस सेकंड में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का सा थोड़ा बहुत भी मोशन में है, अभी हम पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था उसका, समथिंग था, फाइनल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सो हाउ इट चेंजेस, बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, बाय अप्लाइंग। अभी इसका कॉज हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, कॉज पे मत जाना भी। सेकंड डाउट क्लियर, दैट वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको स्पीड में लाना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया, मैं उसे क्या कर सकता हूं, फोर्स लगा के स्टॉप कर सकता हूं। बाय अप्लाइंग फोर्स मैं स्टॉप कर सकता हूं। जस्ट वेट, हैविंग द फैन, मेरे पास एक फैन है, आई जस्ट ओपन इट द फैन फॉर यू गाइज दैट यू कैन सी दैट हाउ ऑब्जेक्ट कैन। लेट्स सी हियर, दिस इज द फैन। मैं 10th क्लास को समझाने के लिए आई यूज दिस इज द फैन। यू कैन सी हियर दिस इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी इसका मोशन ऐसे दिख रहा है आप लोगों को। मैंने क्या किया, और फोर्स लगाया, मोशन और ज्यादा हो गया। सो बाय अप्लाई मुझे फोर्स लगाना पड़ा, इसके लिए क्या हुआ, अप्लाई। अब देखो इसमें मैं फिर तीनों को इफेक्ट को समझा रहा हूं। पहले क्या, ये रेस्ट में है, अब फोर्स अप्लाई किया मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, कैसे, मैंने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फोर्स डाला और ये मूव करना स्टार्ट हो गया। कोई डाउट? सेकंड क्या था कि ये मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, मैंने इसको रोक दिया, कैसे, फोर्स लगाया, पॉज किया इसको, ये स्टॉप हो गया। थर्ड, अगर ये मोशन में है, ठीक है, मैं इसके मोशन को इंक्रीज कर सकता हूं, कैसे, बाय अप्लाई
फोर्स। 3 चीज समझ गया, ये तीनों डाउट क्लियर? डू हैव एनी डाउट? नाउ थर्ड थिंग, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? पहले इसी को ले लेते हैं, फैन को ही लेते हैं फोर्थ एग्जांपल समझने के लिए। चलिए ये देखिए, अभी ना मैं इसको ऐसे घूम रहा है, ठीक है? अब देखो कैसे घूमने लगा, उल्टा घूमने लगा। अब क्या हुआ, यहां देखिए, अभी ऐसे घूम रहा है, उल्टा हो गया। कैसे हुआ ये सब? बाय अप्लाइंग फोर्स। हाउ इट है पॉसिबल? बाय अप्लाइंग फोर्स। मैंने फोर्स को अप्लाई किया। वन मोर एग्जांपल, फुटबॉल खेल रहे हो, किसी ने किक किया फुटबॉल को, वो आपके डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है? आपने फिर उसको किक कर दिया, आपने क्या कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। आपने क्या किया? बाय अप्लाइंग फोर्स यू चेंज द डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, फोर्स कैन ब्रिंग ऑब्जेक्ट अबाउट टू चेंज इन डायमेंशन। अब देखिए ये डायमेंशन मीन्स क्या हो गया? फोर्स से आप उसके डायमेंशन में चेंज करते हैं। डायमेंशन मीन्स शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डू मीन बाय डायमेंशन? शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उसके डायमेंशन, मेरे पास ये टेप का है, ठीक है? मैंने अप्लाई किया फोर्स, अभी ये सर्कल था, क्या हो गया शेप इसका? डंबल जैसा हो गया ना कुछ। फिर मैं इसको कैसे लिया? सर्कल में लिया ना। अगेन समटाइम लाइक डंबल, मैंने फिर इसके फोर्स लगाया, कैसा हो गया? सर्कल हो गया। सो अप्लाई बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द डायमेंशन। बैलून, स्क्वीज द बैलून, लेमन का एग्जांपल। तो ये जो इफेक्ट है लास्ट वाला, अ फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स क्या हो गया? मीन्स चेंज इन shape and size. Dimension means, what do you mean by dimension? That you can change the shape and size of an object. आप shape and size of the object change कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक? Any doubt? Now, ये तो था force and its effect. अब इन सब के आधार पे, on the basis of these definitions, these effects and the initial definition, we can conclude one more definition. I will just tell you one more definition. So we can conclude the force is an external influence. A force is an external influence which change or try to change the state of an object. वो चेंज करता है या ट्राई टू चेंज करता है, किसको ट्राई करता है चेंज करने का? किसमें? बॉडी के स्टेट में, ऑब्जेक्ट के स्टेट में। डाउट? एनी काइंड ऑफ डाउट? अगर आपको थोड़ा सा यहां डाउट हो, थोड़ा सा सोचो, आप सोचो कि क्या कर सकते हैं हम बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स अप्लाई करके हम क्या क्या कर सकते हैं? हमने देखा 5 इफेक्ट, ये 5 इफेक्ट हम फोर्स से कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट? यू कैन write in my comment section. As we see the initial definition, class 8 definition, what was it? The push or pull, or initially हम ये बात किए थे कि force क्या? Push or pull, by which we can change the state of object. Then we see the effect of force, that what we do, what is the influence of force and on an object, कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स का क्या इन्फ्लुएंस है। हमने ये 2 चीज देख लिया। अब इस दोनों को कंबाइन किया हमने। नाउ वी कंबाइन दीज इफेक्ट्स एंड हमने सारे इफेक्ट्स को कंबाइन कर दिया और उससे हम एक नया डेफिनेशन निकाल लिया फोर्स का। व्हाट इज इट? दिस इज फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ऑब्वियस बात है, फोर्स क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। एक्स्ट्रा मीन्स इंटरनल तो नहीं है, बाहर से अप्लाई करते हैं। सो इट इज ए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस which change, और बहुत इंपॉर्टेंट, जो चेंज करता है और tends to change. This word very important, tends to change. या तो वो चेंज होता है या वो कोशिश, टेंस मीन्स ट्राई करता है चेंज करने का। क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन, डिफॉर्म अ बॉडी। यहां पे देखो नंबरिंग करते हैं। 1 स्टेट ऑफ रेस्ट, 2 यूनिफॉर्म, डायरेक्शन,
इन चारों में से कुछ भी करता है, या तो हो जाता है या करने की कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड फोर्स. दिस इज द न्यू डेफिनेशन, दिस इज द कंबाइंड डेफिनेशन, एंड दिस इज ये एक डेफिनेशन है जो 9th लेवल पे आप लिख सकते हो. आप वो भी लिखोगे, दिक्कत नहीं है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, यू विल गेट द मार्क्स. बट एक स्पेसिफिक डेफिनेशन, एक थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन. फोर्स इज एक्सटर्नल influence. I forgot to write the influence. Force is external influence which change or tends to change the state of rest, uniform motion of a body, or change the or of a body, or change the direction of an object of a body, or deform a body. इन सब में से कुछ भी हो सकता है. किसके द्वारा? By applying force. This is the definition. Now, this force in day-to-day life, this force broadly divided into two types. This force, I just wrap it down here. This force, if you are in doubt, you can comment me. This force is broadly divided into two types. We will discuss one by one the type of all the forces. So the types of force broadly divided. First is टाइप्स ऑफ फोर्स. वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट, बैलेंस. सेकंड, अनबैलेंस. टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस. ये बैलेंस क्या होता है? बैलेंस क्या होता है देखते हैं. अब मैं बोल रहा कि मुझे इस मार्कर का बैलेंस बनाना है. ये बैलेंस में मीन्स ना ये फॉल हो रहा है ना कुछ इसके पोजीशन में चेंज आ रहा है. क्या ये बैलेंस है? ये देखो तो गिर गया. तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है इस चीज को हम देखते हैं. सबसे पहले अगर डे टू डे लाइफ में बात करें तो हम ना बचपन में जो प्ले स्कूल में पढ़ते थे तो एक बैलेंस करने वाला होता था. एक साइड हम बैठ जाते थे, दूसरे साइड कोई और बैठता था. ठीक है. और एक टाइम होता था जब दोनों हम बीच में ही लटकते होते थे, दोनों का अगर वेट बराबर होता था. ठीक है. और जब अगर कोई मोटा इंसान बैठ गया और हम पतले, मोटू पतलू की जोड़ी, फिर क्या होता था एक साइड पूरा डाउन है और एक साइड पूरा अप है. ठीक है. सो हमें बैलेंस करना होता है. ठीक है. एक व्हील हम स्टैंड पे भी खड़े होते हैं, इस पे ऐसे से बैलेंस कर देते हैं आप लोगों को. बैलेंस मीन्स क्या होगा? हर तरफ से इक्वल फोर्स उसको मिल रहा हो. मीन्स क्या हो? रिजल्टेंट फोर्स क्या हो उसका? जीरो. रिजल्टेंट फोर्स क्या हो उस पर? जीरो हो. देखते हैं कैसे बैलेंस फोर्स के लिए. वेट, लेट अस कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है, एक टेबल पे रखो. ठीक है. यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है. अब हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को जानने से पहले वन मोर थिंग हम डिस्कस करें कि हम फोर्स को मेजर किस में करते हैं. ठीक है. तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. क्या होता है? न्यूटन. कहां से आया न्यूटन, कैसे हुआ, ये हम आगे भी डिसाइड बताएंगे. तो हम अभी तक यहां तक जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो अब यहां पे देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स. यहां से मैंने मान लिया कि हर साइड से ये ए है, बी है, सी है, डी है. अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये इक्वल टू जीरो हो जाए, ये क्या होगा? बैलेंस फोर्स. व्हाट इज बैलेंस फोर्स? व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो. व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो, देन इट्स कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स विल बी बैलेंस फोर्स. The resultant of all the forces is zero, then it is called as balance force. अगर बैलेंस नहीं हुआ, ए बी मान लो मैं कोई फोर्स हटा दिया यहां से, ये फोर्स मैं हटा दिया. अब क्या होगा? ये अनबैलेंस फोर्स. मान लो कि यहां पे क्या था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होना चाहिए. यहां पे क्या था? यहां अगर डी रहे भी, मान लो डी है भी, सी है भी, सॉरी, और ये डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो.
यहां पे इक्वल टू जीरो होगा, यहां पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, बैलेंस फोर्स, ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल देखते हैं। आप टैग ऑफ वॉर देखते हो, एक टाइम होता है जब तक रस्सी दोनों साइड इक्वल होता है, जब तक दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, लेकिन जब भी एक साइड फोर्स ज्यादा होता है तो वो रस्सी उधर इंक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। बहुत सारे एग्जांपल्स है बैलेंस है अनबैलेंस फोर्स का। यहां तक डाउट है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब सारे फोर्स का सम अगर जीरो हो वो बैलेंस फोर्स है, अगर जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्स है। कुछ ही बातें अबाउट बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज नहीं आता है, जो इनिशियल पोजीशन है वही पोजीशन रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। आप अगर ना बैलेंस फोर्स में आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, बिकॉज इन सब का सम कितना होता है, जीरो। सो बैलेंस फोर्स, आई थिंक यू गॉट इट। अगर थोड़ा सा भी और डाउट है मैं एक दो और बातें बताता हूं आपको बैलेंस फोर्स। नाउ अब आपके मन में आएगा कि सर आपने वहां पे बैलेंस फोर्स में ABCD लिख दिया था, इस चीज को हम समझे नहीं, कौन कौन से फोर्सेस पे लगते हैं। तो एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस पे देखते हैं कितने टाइप के फोर्स लग सकते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज अ बॉक्स, ये एक बॉक्स है जो कि ग्राउंड पे है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां से पुश किया, इसको पुश किया मींस फोर्स बाय पुश किया। अब देखिए ये जब मैं पुश करूंगा तो क्या ये ऐसे ही रहेगा, नहीं, क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन, इसके अपोजिट फोर्स, क्योंकि ये किसी सरफेस पे होगा, किसी सरफेस पे होगा, कांटेक्ट में होगा, ठीक है। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स, तो इधर से क्या लाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, अर्थ पे है, तो ये नीचे की ओर आएगा, क्यों, ग्रेविटी के कारण। अब इस ग्रेविटी का एक रिएक्शन फोर्स भी होगा, तो आप देखिए चार टाइप का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चार टाइप। तो अप्रॉक्स सभी ऑब्जेक्ट पे एटलीस्ट दीज फोर फोर्सेज आर वर्किंग। If the sum of these forces is zero, then it is a balanced force. But if the sum of these forces is not zero, then it is a unbalanced force. यहाँ तक कोई डाउट, बैलेंस और अनबैलेंस में कोई डाउट है? वन मोर थिंग अबाउट बैलेंस और अनबैलेंस, मैं पहले बता दिया कि बैलेंस, बाय अप्लाइंग बैलेंस फोर्स यू कांट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, you can't change the speed of an object, or you can't change the direction of an object. ये सब कैसे होगा, unbalanced force से। So if any doubt in balance and unbalanced force, now we'll just move on next topic, and the next topic we will discuss is laws of motion, force and its laws of motion. Now we'll discuss the laws of motion. This law was firstly given by Galileo. गैलीलियो ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। गैलीलियो को फॉलो कर लिया किसने, सर आइजैक न्यूटन ने, और उनके नाम पे तीन लॉ आ गया। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसको, तीनों लॉ को। नाउ we'll discuss a very important topic, Newton's laws of motion. Before we discuss the Newton's law of motion, we just go back the history of the laws of motions. न्यूटन से पहले गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ अपना ऑब्जर्वेशन थियोरेटिकली प्रूफ किया, थियोरेटिकली बताया था। न्यूटन से पहले गैलीलियो जो थे उन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट बताया था, डेमोन्स्ट्रेट किया थियोरेटिकली। उन्होंने सबसे पहले पॉइंट क्या बताया था, इफ यू टेक अ इंक्लाइन सरफेस, अगर आप इंक्लाइन सरफेस करते हो, रखते हो, और यहां पे एक बॉल डाल दो, एक बॉल है, एंड व्हेन यू लीव द बॉल it will goes like यहाँ पे, here it will, the velocity of the ball will be increase. यहाँ पे क्या होगा, velocity of the ball will be increase. अब इसी के साथ ये जो फिगर है, दिस फिगर, मान लो ये दोनों कुछ इस टाइप से है, oh, let us consider this figure like this.
This figure is like this, okay? And a ball is started from here, goes down. A ball is started from here. Initially क्या होगा? आप अगर inclined surface, कोई भी inclined surface होगा, वहां पे क्या होगा? ये यहां से मूव करना स्टार्ट होगा. यहां पे इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया यहां पे आके अगर इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां पे क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? मैक्स. मैक्सिमम वेलोसिटी. अब यहां पे क्यों ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. इस पे क्या लग रहा था? यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, और उसको बार बार उसके कारण क्या हुआ था? टेंजेंशियल इसमें डायरेक्शन में इसका चेंज आ रहा था. यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स था उसको अपोज नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे ज्यादा एक्ट हो रहा था, ज्यादा इफेक्टिव था एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स पे. अब यहां पे क्या हो रहा है? अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचना है, इसको अगर दोनों का हाइट सेम है तो यहां से आएगा और फिर यहां तक जाएगा. ये गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा. सो यहां पे आके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. यहां पे मैक्सिमम था, यहां भी 0, यहां भी 0, मैक्सिमम यहां पे. Because here there is a opposing force, because this body is going against the gravity. Gravity के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. यहां पे वेलोसिटी क्या था? इसका इंक्रीज हो रहा था, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया? इसका डिक्रीज हो रहा है. किसका? इस बॉल का. ये चीज किसने देखा? गैलीलियो ने. यहां तो कोई डाउट है. नाउ व्हाट ही डू, अब उन्होंने क्या किया कि ये जो डिस्टेंस था दिस, इसको तो ऐसे ही रखा. अब पहला आपने देखा, इसका मैं नेमिंग कर दूं, सेम हाइट पे. ये ए है, बी, सी. ये एंगल हो गया, मान लो कुछ भी एंगल है, थीटा, ठीक है. अब मैं इसको डी, ई, और एक प्लेन है ये एफ. अभी अब यहां पे देखो मैंने क्या किया. पहले एक एंगल था, जितना एंगल पे ये था उतना ही पे मैंने सेम हाइट पे रखा. व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट इज कम्स फ्रॉम हियर, इस हाइट तक गया, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे मैक्सिमम, वी मैक्सिमम. नेक्स्ट में क्या हुआ? मैंने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया. अब क्या हो गया? ये ज्यादा यहां, अभी यहां तक जा रहा था, अब सेकंड केस में क्या होगा? यहां तक जाएगा ऑब्जेक्ट. जो बॉल है मूव करते हुए आएगा, यहां तक ज्यादा जाएगा, ठीक है. थर्ड केस में क्या होगा? ये और ज्यादा दूर तक जाएगा. लेकिन जब ये वर्टिकल हो गया, पूरा प्लेन आ गया, तो यहां पे अगर कोई फोर्स एक्ट ना करे, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशन के अलावा, तो ये मूव करते रहेगा, ये मूव करते रहेगा. ये किसने बोला? गैलीलियो ने. ये किसका एक्सपेरिमेंट था? गैलीलियो का. कोई डाउट है यहां तक? अगर डाउट है प्लीज कमेंट मी. नाउ इस चीज को उन्होंने बस थ्योरेटिकली बताया, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया, मैथमेटिकल या प्रैक्टिकली कोई प्रूफ नहीं दिया. इसी चीज को स्टडी किया किसने? सर आइजैक न्यूटन ने. सर आइजैक न्यूटन स्टडी अबाउट दीज थिंग्स एंड दे गिव द लॉज. दे गिव द 3 लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड देन थर्ड लॉ. We will discuss one by one about the law. यहां तक if you have any doubt, you can ask me. If you have any kind of doubt, you can ask me here. Now we'll discuss the laws of motion. First law. Now we'll discuss the first laws of motion. What the Newton say about the first law? Let us start. Example से start करते हैं. एक मेरे घर में फैन लगा हुआ है. Okay. What I observe that without switch on the fan, we can't move the fan. Without supplying electricity, electricity means force. उसके अप्लाई के बिना वो मूव नहीं कर सकता है. छोड़ो उतना दूर क्यों जा रहे हो आप सर? दिस इज अ मार्कर. मैं बोला मार्कर मूव फ्रॉम हियर. मार्कर पहुंचा यहां से शुभम के पास. शुभम आपके पास मार्कर पहुंचा? नहीं. Nitin, you get the marker? No, but I'm ordering him. It can't be goes there because every object of this universe, all the object of this universe will try to maintain its initial position till
an external force is not applied on it. ये क्या बोल दिया सर आपने? Yes, Newton's first law. So let's start first Newton's first law. This law states every object of the universe try to maintain its initial position till an external force is not applied on it. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो वो अपने इनिशियल पोजीशन को मेंटेन रखेगा. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा. इफ इट इज इन मोशन इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन. इट इज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन देन इट विल बी इन दैट डायरेक्शन. लाइक अगेन मैं दिस इज इन दिस डायरेक्शन. मैं बोला चल मूव हो जाए. क्या मूव होगा? नहीं. मुझे क्या करना पड़ा? इसलिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया करना पड़ा. This is the first law of motion, and this law is also called as law of inertia. This law is also called as laws of inertia. In next video we will discuss about it.